देखिए जहाँ जहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम कॉन्शियस लिविंग की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट यू नो वन event kind of thing. It's more about how we live our lives very beautifully, very intensely, with all the happiness that we can. So spirituality is really, doing everything that we are doing, meeting our patients, all our meetings, managing our hospitals, सारी चीज़ें करते हुए, लेकिन इट्स लाइक आपने देखा होगा जैसे घर पे देयर इज अ मदर एंड देन देयर इज अ चाइल्ड. माँ सब कुछ करती है घर पे, शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, घर के सारे काम, मे बी ऑफिस ऑल्सो एट टाइम. सो मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स आउटसाइड, there is this little attention that she always keep, one eye that she has always on the child कि बच्चा ठीक है या नहीं. Yeah, so spirituality is taking care of that inner child. Yeah, so सारी चीजें करते हुए, everything that you are doing, we have that little intention inside. क्या वो अंदर का जो बच्चा है, क्या वो थोड़ा रो रहा है, in the sense, feeling sad, why this, why that, so much, so much stress, so life is so hectic, वो थोड़ा सा रोना. या कभी बच्चा क्रैंकी होता है क्या, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इनसाइड देयर इज सम कंप्लेन दैट इज गोइंग अबाउट समथिंग इन लाइफ. या सो वो एक नज़र अपने अंदर के उस बच्चे की तरफ, वो ठीक है. या और फिर जब वो बच्चा ठीक है तो माँ सारे काम कर लेती है, और अच्छे से कर पाती है, और फोकस से कर पाती है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज टू अस. We are able to take care of our inner world so beautifully. So it's not like an event which is getting over today, with this session, but it's a lifelong experience that all of us can have. एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि अप्रैल से ये सेशंस आप सब कंटिन्यू भी करना चाहेंगे. ऑन दैट नोट, let's start with today's session. Let's start with a small check-in. अब check-in क्या है? Like we travel. अगर मैं मुंबई से नागपुर आती हूँ, and if we get an opportunity to meet, तो मैं मुंबई से नागपुर की अगर फ्लाइट लेती हूँ, तो फ्लाइट लेते हुए मुझे चेक इन करना होगा, राइट? आई वुड चेक इन टू माई जर्नी. नाउ व्हाट इज दिस चेक इन? दिस चेक इन इज टिपिकली हमारी जो अगले 40-45 मिनट्स की जो अंदर की जर्नी है, द जर्नी विद इन दैट वी आर टेकिंग, वी विल चेक इन फॉर दैट. इन द सेंस वी विल प्रिपेयर आवर माइंड completely for that inner journey. So are we all ready? You can just relax. अगर आप कुछ कर रहे हैं, morning का time है, you may have your work after this, you have to reach some place, your hospital or your clinic, लेकिन कुछ minutes, ठीक है, 5 मिनट, अगले few minutes, what I want you to do is just leave everything aside. Yeah, and let's prepare our mind for this wonderful inner journey. Very, very relaxed, very comfortable. Little time for your own self. बाहर की सभी बातों से अपने अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर. महसूस करें इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको स्वयं से जोड़ती है. बहुत गहराई से उस कनेक्शन को हम महसूस करें. और हम अपने से कहें, आई एम रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग. आई एम रेडी
for some new learnings, for a new way of living. बहुत ही ओपन माइंड के साथ, बहुत ही अलर्ट होकर हम अगले कुछ पल अपने साथ बिताएं। Very, very relaxed, very comfortable. Om Shanti. So that was a little check-in for ourselves कि हम अपनी तरफ अपना सारा attention लेकर आए, because that's the first step. ये नहीं कहूँगी कि it is starting of meditation, but it's a first step towards reaching that goal of meditation, है ना। हम meditation करना चाहते हैं, लेकिन उसका पहला step ही है कि हम बाहर की बातों से कुछ समय अपने साथ बिताएं. And that's also, you know, a way of conscious living. To discuss a little more about what conscious living is, we'll do one little exercise. और ये जो पूरा session रहेगा, अगले जितने भी time, 40 minutes or half an hour that we have, what we will be doing is, it will not be a monologue where I keep talking. I would be, it would be great if we can get some responses from our doctor community, also our medical fraternity also. जो भी participants join किए हैं, आप अपने responses chat box के through share कर सकते हैं, या if the system allows you, आप unmute करके भी share कर सकते हैं. So the next exercise, what I'll be doing is, I'll be displaying a slide for a couple of seconds. Okay, मैं 5 seconds के लिए वो slide को display करूँगी on your screen. आपको उस पे जो text लिखा है, वो टेक्स्ट आपको रीड करना है. एंड हियर वी गो, आई शेयर माय स्लाइड. हियर इज द टेक्स्ट. आपको इस टेक्स्ट को 5 सेकेंड्स में रीड करना है. ओके, सो आई स्टॉप शेयरिंग. आई होप यू हैव बीन एबल टू रीड. ग्रेट. सो द क्वेश्चन, डोंट वरी, ये नहीं क्वेश्चन होगा कि अच्छा आपने क्या रीड किया, आप उसको फिर से बताइए. द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, ये जो टेक्स्ट आपने देखा, वो आपके नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट जो आप रीड करते हैं उससे कितना अलग था? हाउ वाज इट डिफरेंट? एनी थॉट्स, एनीवन? Very different. Spellings was different completely, but Spelling we was could read it. different. But we could read And it. it was combined totally. There was no gap in Mine. There between. was no spaces, no Space gap. in between. Okay. Yeah. So were you able to read, or were you kind of guessing कि अच्छा क्या लिखा है? शायद ये हाँ, word है, yes, शायद ये yes, word yes. है. Not Yeah? easy to read. Not easy. It was not easy. Not easy to read. We were able to read, but थोड़ा सा guess कर रहे थे कि Guess. ये word Yeah. होगा. Okay. Yeah. Wonderful. Thank you, Kanchan ma'am, for sharing. Thank you, Sushma ma'am, for sharing. Vandana ma'am, any other responses? और कोई बात जो आपको अलग लगी इस text में? Anybody? We could read it like it's a meditation towards a journey. Like That's many right. words we could read. Yeah. Yeah, some of the words we could read, but did it take time than a regular reading? Did it take more time for you, Sushma ma'am? Initially, but later on it became very Yeah. smooth. It became very smooth. Wonderful, wonderful. Any other thoughts, anyone? Hanji? So like Kanchan ma'am said, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, कुछ वर्ड्स हम गेस कर रहे थे, कुछ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था. So let's make it easy, okay? Because ये हमारा लास्ट सेशन है, we don't want to complicate things for our participants. तो हम इसको थोड़ा सा easy कर लेते हैं. आपके पास फिर से 5 seconds होंगे, और वो 5 seconds में आपको फिर से वही टेक्स्ट रीड करना है. And your time starts now. Yeah? Yes. And the time is up. I'll stop Yes. sharing the screen. Here we go. How is it? How is the experience different from the first one? Very easy to read. Easy That to was read. great. Okay, Yes. wonderful. Easy to read. What else? We could complete in that particular time whatever you had We given. could complete in the time duration. Wonderful. What else? I would want others, all our other participants also to kind of share. हमने देखा कुछ slide, और भी हमारे जो participants हैं, प्रमिला मैम, देवेंद्र सर, हेमंत
sir, Nandini ma'am, आप भी थोड़ा सा, we would want to kind of just share our thoughts and responses, so then we know that all of us are 6 o'clock in the morning, you're still awake. Yeah, what's the thought? Words were known to us. The Hanji, words were known to us. So words were known to the us. words Yeah. were known to us. Yes. Yeah, We could so we can read that way very we easily. could get the message properly. We Okay, can we could get understand the it message. very nicely. Understanding ज़्यादा थी. That's wonderful. Because of space, we could read that Amazing. Thank you, Anjali clearly. ma'am, for sharing. There were spaces in words, right? Spaces थी तो क्या हो रहा था? Because spaces थी, हम चीज़ों को बहुत आसानी से रीड कर पाए, हम चीज़ों को समझ पाए, हमें डिफिकल्टी नहीं हुई, टाइम नहीं लगा. देवेंद्र sir says what was easy to read. Now, don't worry, I'm not getting into an English class. This is not, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी spaces, full stop. What I'm trying to bring out here is our way of living. वे ऑफ थिंकिंग. हमारे मन के संकल्पों की गति में वो स्पेसेस लाना, मीनिंग थॉट्स विच हैव सम पॉजेज इन बिटवीन. ऑफ कोर्स वी कांट स्टॉप थिंकिंग, लेकिन संकल्प जहाँ पे कुछ बीच में पॉजेज है विच हेल्प्स आवर माइंड रिलैक्स. देखिए जैसे हार्ट भी बीट करता है, हार्ट बीट करता है कुछ सेकेंड्स और फिर इट जस्ट काइंड ऑफ पंप्स इन रिलैक्सेस. इट डजंट कंटिन्यूअसली, राइट? वो पॉज क्या करता है? वो रिलैक्सेशन देता है. इसको रिलैक्स कैसे करेंगे? When our thoughts have some of these pauses in between, there is no stream of continuous thoughts. क्या हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना? बिजी लाइफ, so much to do, taking care of the patients, taking care of the family, doing everything. Okay, हमारे संकल्प इतने ज़्यादा उलझे हुए और हम इतने संकल्पों में, as if we are living in the stories of mind. लाइफ कहाँ हो रही है? Life is happening here in the world, right? And somewhere we are so entangled in our thoughts that we are almost living in the stories of our mind. मन में जो संकल्प चल रहे हैं, like the first slide में क्या था? Pauses नहीं थे, full stop नहीं था, comma नहीं थे, right? So no punctuations, no pauses, no uppercase, lowercase, nothing. बस चले जा रहे हैं. Exactly that way, sometimes what happens to our mind is we keep thinking and there's a continuous stream of thoughts. Now, conscious living, what it does is it helps us bring those right pauses in our stream of thoughts. मन के संकल्पों की गति को a little slow down. When thoughts slow down, we are able to experience life वेरी इंटेंसली. हम चीज़ों को सही तरीके से देख पाते हैं. अभी क्या होता है, हम संकल्पों में जब कई बार उलझे होते हैं तो लाइफ जैसी होती है उसको वैसे नहीं देखते, हम अज्यूम करते हैं ये वर्ड होगा, जैसे यहाँ अज्यूम किया ना, वहाँ पे लाइफ सिचुएशंस को अज्यूम करते हैं. लाइफ को समझना मुश्किल होता है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों है. बट व्हेन वी लिव इन अवेयर लाइफ, जो पिछले अप्रैल से लेकर आज तक जो बातें हमें बताई गई अपने बारे में, उस अवेयरनेस में जितना हम जीते हैं तो वो क्या होता है, वो पॉजेज आती है. फुल स्टॉप. व्हाट डू वी मीन बाय पुटिंग द राइट फुल स्टॉप? वेरी सिंपली, कोई सिचुएशन मेरे सामने आई, एज मेडिकल फ्रेटर्निटी आई नो दैट फॉर ऑल ऑफ यू टफ सिचुएशंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें, कोई पेशेंट, कुछ हो रहा है, हॉस्पिटल, कितना कुछ मैनेज करते हुए. सो सिचुएशंस सामने आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? लेकिन उन सिचुएशंस, एक सिचुएशन मेरे सामने आई, बीइंग एबल टू पुट फुल स्टॉप, इट्स ओके. पेशेंट के रिलेटिव्स ने कुछ कहा, I don't know how that hand got out. This thing, 1 second. Yeah. So patient के family ने कुछ कहा, maybe they were in their emotional trauma या जो भी है, उन्होंने कुछ कहा. You've done your best, you've done what needed to be done at that point in time. किसी ने कुछ कहा, it's okay, full stop. That that ability to put right pauses, right full stop, conscious living gives us. Aware living, who am I, जो आप अप्रैल से अब तक सुने हैं ना, who am I, ये जो चल रहा है बाहर, ये क्या है? It's just
जैसे we're all guest here ना, कहते हैं guest consciousness, one very powerful thing that we can help us live aware life is guest consciousness. कहीं से आए हैं, वहाँ वापस जाना है, घर हमारा, हमें वापस जाना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं. सो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, वी आर ऑन द जर्नी, बीइंग ऑन द जर्नी. व्हेन आई द बीइंग, आई एम ऑन द जर्नी. कई बार ना हम बाहर जाते हैं, कहीं जर्नी पे जाते हैं, एंड वी पे सो मच टू गिव टू हैव टू लुक एट साइट सीइंग ना. साइट सीइंग देखने के लिए हम कितना पे करते हैं, हम बिकॉज वी एंजॉय लुकिंग एट साइट सीइंग. So somewhere, understanding, Raj Yoga has given me this very beautiful understanding that when I am on this journey, I'm getting to see all these free side scenes. आसपास की सारी साइड सीन्स, बिकॉज जर्नी पे है ना, जर्नी पे साइड सीन्स तो आएंगे. तो उस अवेयरनेस में जब हम जीते, कॉन्शियस लिविंग, व्हेन वी लिव लाइक दैट, chances of being able to put right pauses, right full stop, right comma becomes much more easier. And then experience of life shifts. The experience of the way we are, living our life. लाइफ भी क्या है, लाइफ इज़ नॉट दी सिचुएशन. समटाइम्स जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हम लाइफ कहते ही लाइफ की सिचुएशंस को देखने लगते हैं, राइट. लाइफ में क्या है, लाइफ में ये है, ये है, ये है, मेरा हॉस्पिटल है, मेरी क्लिनिक है, मैं आई हैव टू मैनेज दिस, आई हैव टू मैनेज दैट. दैट बिकम्स आवर लाइफ. बट इज दैट रियली लाइफ, और आर दीज लाइफ सिचुएशंस? लाइफ क्या है? लाइफ इज this energy, life force or life energy, and the way I am experiencing every moment that I am living, that's life, right? It's an energy which I am every moment experiencing. That's life. But आजकल हमारा फोकस कहाँ हो जाता है? शायद life is this everything outside, whereas life is what is happening inside of me. Just think about it. Yeah. अगेन, ये जब हम बात करते हैं लाइफ को एक्सपीरियंस, बहुत ब्यूटिफुली, बहुत इंटेंसली लाइफ को एक्सपीरियंस करने की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज़ शायद उसमें थोड़ा सा जो है हमारे एफर्ट को बढ़ा देती है. जैसे हम अवेयर लिविंग की भी बात करते हैं ना. अच्छा, हु आई एम अ बीइंग, आई एम ऑन दिस लॉन्ग ह्यूमन जर्नी. हमने सुना, ठीक है, हमने सुना और हमने उस अवेयरनेस को क्रिएट भी करना शुरू किया. हाँ, आई एम अ बीइंग, बट उसने कल ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया. और कोई जो जिससे हमारे कुछ टाइम से सब कुछ हमारे बीच में इक्वेशन उनके साथ ठीक नहीं, और वो कल हमारे सामने आ गई, तो फिर वही सीन जहाँ पे उनसे कुछ बात हो गई थी, हो सकता है एक दिन पुरानी बात, एक हफ्ता पुरानी बात, एक महीना पुरानी बात, और हम सब बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना. हम मेडिकल फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम एज ह्यूमंस ना, हम अभी कुछ और बातों में भी बड़े एक्सपर्ट हो गए. हम 10 साल पुरानी बात को लेकर भी अभी इस मोमेंट में बहुत कुछ अंदर क्रिएट कर सकते हैं. होता है ऐसे कुछ पुरानी बातें, है ना. जितना अब टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर लिविंग लाइफ, क्योंकि हमने कहा ना लाइफ तो ये है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर लिविंग आवर लाइफ, अ सिंपल टेक्निक. ओके, people who experience sadness in life, कभी दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा लो फील करते हैं, मूड उतना अच्छा नहीं रहता है, लो फील करना, टिपिकली दोज आर द पीपल हु लिव मोर इन द पास्ट. जब हम पास्ट में जीते हैं, हम पास्ट की कोई ऐसी बात, ये कहा, ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों, टक टक टक, इतनी सारी चीज़ें, है ना. When we live in the past, we experience more sadness. When we live in the future, we experience more, anxiety and fear, because it's unknown. We don't know what's there in the future, what's in store. तो हम क्या करते हैं, एक fear या एक anxiety सा create होता है, एक question mark हमेशा रहता है. So to understand where are you living your life, look at what is your experience of every day. Like today, what is it and you will see it is like a pattern. Each one of us have different patterns, but we've created these patterns. जो हमने कल एक्सपीरियंस किया सारे दिन में, इट्स लाइक इमोशनल ग्राफ. ओके, हम उठते कैसा फील करते हैं, हम सारे दिन में जब हम रेडी हो रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब हमारा टिपिकली मूड कैसा रहता है, हम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब हमारा मूड कैसा रहता है, हम सारे दिन में जो एक्सपीरियंस, लाइक दैट इमोशनल ग्राफ, हम सबका एक इमोशनल सिग्नेचर भी होता है.
ओके जैसे हमारा सिग्नेचर होता है ना, वैसे हमारे इमोशनल सिग्नेचर भी होता है. इट्स लाइक आवर इमोशनल डीएनए. वो क्या करता है, एक पैटर्न सा बन जाता है. सो इफ आई एम यूज टू लिविंग मोर इन द पास्ट, चांसेस आर कि वो एक पैटर्न मैं क्रिएट कर चुकी हूँ जिससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं फ्यूचर को लेकर. सो वट एवर इज योर पैटर्न, जस्ट सिट बैक, look at what is your pattern, identify your pattern. Is there any pattern? First question is, ask yourself, is there some emotional signature that I have developed over a period of time? क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर इमोशंस है जो मैं बार बार, कल भी वही सोच रहा था, वही फील कर रहा था. देखिए, एवरी थॉट लीड्स टू सम फीलिंग. वन थॉट, same feeling. Thought, feeling. That's how it works. And over a period of time, when that feeling or that emotion becomes very strong, then that emotion becomes basis of creating those thoughts. अब वो thoughts नहीं create करेंगे emotions. Normally thought and then emotion or feeling. Once that emotion becomes your pattern, you don't have to do anything. That emotion triggers automatically. हमें लगता है कि वो हमें गुस्सा दिला रहे हैं, वो हमें उनकी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ. होता है ना कई बार हम कई लोगों को, we think that because of them I'm feeling like that, because my support staff didn't be reach on time, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से I'm feeling upset. But the reality of each one of our lives, and faster we accept this, easier it is for us to work upon ourselves, is that वो हमारे लिए कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं. It is there within us. It is an experience that I, the being on the journey, have created for myself at some point in time. It's there within me. उनका एक्शन वो इमोशन को सिर्फ बाहर लाता है. So whatever is there within me, आप देखेंगे ना, जैसे if you have children at home, if you have two children, for example, if you have two children at home, if mama shouts at both of them, one will create anger, one will create sadness. If what mama said is creating their emotion, both of them should have created same emotion. But it is what is there within that child. वो बच्चे के अंदर जो emotions उन्होंने भर के रखे हैं वही ट्रिगर होंगे, या वो ट्रिगर होते हैं और वही बाहर आता है. So where are we living our lives? Because to create that awareness of who I am, it is important that we slowly, make that effort to let go of these past and, let go of that pattern that we've created. अब let go करने में तो बहुत मेहनत है ना. How do I let go? How do I make that effort to let go any pattern? Easier ways to bring ourselves in this moment. Okay, bringing our attention to this present moment. Let's do that for a couple of seconds. ठीक है, हम कुछ seconds के लिए, जैसे जैसे ये बजता है, every beat that you hear, the only effort that you have to make is हम अपनी attention को इस moment में लेकर आएं. ठीक है, and experience this one moment fully and completely. The only effort. ठीक है, let's do that. Very, very relaxed. Once again, little time for your own self. Neither the past nor the future. ये एक पल, I bring my attention to this present moment. Just be there for a couple of more seconds. Very, very relaxed, very comfortable. So you would have observed कि जब हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, there is very little left to think about. ना, बहुत कम रह जाता है सोचने के लिए. And that's where we are able to live life very intensely. It's like those few moments, जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई पेशेंट एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे सामने आता है,
उस मोमेंट पे एक बहुत इंटेंसिटी, बिकॉज उस मोमेंट में आपके पास स्कोप नहीं है कि हम पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचें, यूर टोटली देयर, और वो मोमेंट हम बहुत इंटेंसली जीते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाता है, हर मोमेंट में उस पास्ट और प्रेजेंट को जब हम लेट गो करते हैं, इस मोमेंट की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, इस मोमेंट में जीते हैं, तो उसी इंटेंसिटी को, लाइफ को उतनी इंटेंसिटी के साथ हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एंड दैट्स व्हाट राजयोगा teaches us. Conscious living, aware living, living life where it is happening. And Raj Yoga is a step ahead. यहाँ यही नहीं कि बस जहाँ लाइफ हो रही है उसको फोकस करें, उससे भी एक कदम आगे राज योगा हमने, जो आपने पिछले अप्रैल से अब तक सुना भी, अवेयरनेस ऑफ हु यू आर। जैसे हमने देखा ना, हमारा एक पैटर्न है, थॉट, फीलिंग्स। अब फीलिंग्स हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर रही है, राइट? सो थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस। एक थॉट आया, उससे हमने फील किया, एक थॉट आया, अच्छा ये कितनी देर बोलने वाले, अभी तो और भी होना है, और भी कुछ प्रोग्राम है, तो एक थॉट आया, और कितनी देर बोलने वाले हैं। थॉट, फीलिंग कैसी आई, थोड़ी घाई, दैट रश्ड फीलिंग, है ना? एक थॉट आया, ओके लेट मी एक्सपीरियंस एवरी वर्ड, फीलिंग कैसी आई, relaxed, comfortable. Look at how our mind is shifting with each thought. Thought, feeling, experience. Thought, feeling, experience. और यहाँ पर राज योगा एक बहुत ब्यूटिफुल जर्नी हमारे लिए, इनर जर्नी जो डिफाइन करता है, हम वो थॉट्स क्रिएट करें जो हमारी ओरिजिनल रियलिटी से हमें क्लोजर लेकर जाता है, विच ब्रिंग्स अस क्लोजर टू हु आई एम। आई एम अ पीसफुल बीइंग। अब सोचिए, इस मोमेंट में और कोई थॉट्स नहीं, बस एक संकल्प, दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग। थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस। जितना डीपर, हमने देखा ना राजयोग में, आपने सुना होगा, मन संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि एनालाइज करें नहीं करे, और फिर संस्कार बनते हैं, पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। टिपिकली अगर हम देखें तो दे आर पैटर्न्स दैट वी हैव क्रिएटेड। नाउ हाउ दीज पैटर्न्स आर क्रिएटेड, डीपर द एक्सपीरियंस। मन ने संकल्प क्रिएट किया, फील किया, या इमोशंस जो एक्सपीरियंस हुआ, जितना डीप एक्सपीरियंस उतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स क्रिएट होंगे। सो सपोज मैंने कोई पैटर्न्स क्रिएट किए हैं, जो हमने बात की ना, पास्ट या फ्यूचर या सैडनेस, एंग्जाइटी, इनके पैटर्न्स अगर कुछ क्रिएट हुए हैं, द वे टू डेवलप न्यू पैटर्न्स, द वे टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस, या संस्कारों को रिक्रिएट, दैट री इमर्ज करने का तरीका है थॉट, feeling, experience. Deeper the experience, deeper the programming, deeper the patterns, right? So let's take 2 minutes. ठीक है, हम लास्ट 2 मिनट लेते हैं, हमारे साथ दीदी जी भी ज्वाइन हो गए हैं। हम लास्ट 2 मिनट लेते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस की बात की ना, उसको और गहराई से अनुभव करने के लिए। एंड देन वी ऑफ कोर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू रजनी दीदी, जो हमारे साथ ऑलरेडी है, इस पूरे प्रोग्राम के बैकबोन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स लेट्स एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव हर्ड सो फार, एंड देन वी लिसन टू दीदी जी। सो वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा सा समय फिर से हमारे अपने लिए देखें, अपने मन के संकल्पों को, हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उन संकल्पों को धीरे से ऑब्जर्व करें। उन संकल्पों को रोकिए या दबाइए नहीं, बस धीरे से ऑब्जर्व करें। As you focus your attention on your thoughts, your mind slowly relaxes.
let us all in this moment together create just one thought. बस एक संकल्प में हम सभी कुछ पल के लिए टिक जाएं। I am a peaceful being. इस एक संकल्प को बहुत गहराई से महसूस करें। I am a peaceful being. उस शांति की शक्ति बहुत गहराई से हम अनुभव कर पा रहे हैं, जैसे वो मेरे पर्सनालिटी का एक बहुत गहरा पार्ट बनते जा रही है। This is who I am. Very, very relaxed, very comfortable. Just be with your breath. Just be with yourself. और उस शांति को हम मन के अनुभवों में आज सारा दिन बनाए रखें।